शाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शादी विवाह का जो लगन मुहूर्त स्टार्ट हो गया उसकी शुभकामना है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम महा। ताइयो आपको आज की कक्षा में मैं और भी बातें बताता हूँ। परामर्श द्वारा मैं चंदन कुमार मिश्र, बायोटेक्नोलॉजी स्नातक 2009, तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक। यूट्यूब क्लास चैनल आईडी @चंदनमय विद्या। इसमें क्लास नोट्स हैं 8860827901 पे। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है कि एनालाइज एंड एलोबरेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स लाइक यूनाइटेड नेशंस डेली मीडिया ब्रीफ्स शुड बी कंसीडर्ड एज एजेंडा फिक्सिंग टूल्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एंटिटीज. Like whatever issues are being discussed by the orator and the reporter during United Nations daily media brief, it should be considered as agenda fixing tools for United Nations entities and global multilateral bilateral forums and entities and member nations of the United Nations for inclusion of the suggested items into their program of action. Further proceeding of the reported subject matters for resolving the reported problem with suitable solution providing negotiations among potential stakeholders assures solution cultivation for the reported problem. Respectively, humanitarian services providers serves to offer humanitarian relief for the vulnerable people and victims of the reported area, and problems are resolved promptly and respectively. Text message you can write ऐंग महाविद्या का मंत्र है ओम विद्या नमः. You can write your own understanding or type it in your like SMS applications or some other places like WhatsApp or in Facebook, or you can write it in your notebook also. @Chandanmay Vidya, I am sharing my presentations. So you can search on YouTube @CHANDANMYVIDYA YouTube class channel to search my channel. चंदन कुमार मिश्र, बायोटेक्नोलॉजी स्नातक, तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, विद्या वंदना केंद्र @gmail.com. टेक्स्ट मैसेज क्लासेस फ्रॉम चंदन कुमार मिश्रा 8860827901. दिनांक स्थान आप अपना विवरण लिखें, किस विषय को लेकर आप करना चाहते हैं, आप लोग भी अपना करें. शुभकामना है. श्री गणेशाय नमः. ओम गणेशाय नमः. ओम गौरी नमः. ओम सरस्वती नमः. ओम महामाया नमः. ओम सूर्य नमः. ओम ऐं सरस्वती नमः. ओम ऐं सरस्वती नमः. ओम दुर्गा नमः. ओम पृथ्वी देवी नमः. ओम नमः शिवाय. ओम लक्ष्मी देवी नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ओम ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण शिव गौरी गणेश नमः. ओम ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण शिव गौरी गणेश नमः. So dear sir, madam, greetings of the moments. I am Chandan Kumar Mishra. I am a research and development based author and trainer. I am independently developing text research reports and audio visual tutorials lectures since April 2018 on my YouTube class channel ID @Chandanmay Vidya. I am noticing that an organized criminal gang members are often causing obstacles into the path of my development and creating such circumstances which seems life threatening, such as like my mobile phone was snatched twice in Delhi. A number of typed reports were deleted from my text message classes notes. I have complained against unknown criminals at Prime Minister Office, Home Minister Office, Cyber Security Police Station, North Delhi, and reported higher authority for investigation about the reported problem. I had went to Delhi from Bihar in July 2015 and returned back to my native place in Patna, Bihar in September 2024 after receiving information from in-laws about death of a relative maternal grandmother. May she rest in peace.
I have reported to the higher authorities of the Government of India and United Nations entities about probable facets of indulgence of organized criminals for COVID-19 pandemic scam, which had caused global insurgency and humanitarian crisis. I have submitted several reports to the government offices through my email ID at the rate of myvidya@outlook.com, but I haven't yet received any fees or payment for my intellectual services. I doubt an organized criminal gang members are causing such manipulative transmission of disturbing video footage sequels while I am sleeping since a few months. Earlier, I thought these are dreams, but analysis states these transmitted video sequels while I am sleeping as projected, deviating, and threatening offense against my peaceful state of being and peaceful mental state of living. Thus, demanding raids and legal action against those unknown criminals for offending my personal privacy and state of freedom of consciousness. I found that their intent is evil and offensive, which projects pictures and video footage visual while I sleep or work. It may cause accident. Thus, I am looking forward for your usual legal inquiry investigation about the reported problem and requesting for security services and official support to analyze my reports and help me to receive monetary information and earnings for my services from the competent government authority. With thanks, Chandan Kumar Mishra, stress management trainer and author, YouTube class channel ID at the rate of CHANDANMYVIDYA, messaging class notes 8860827901, sent to the President of India office via email. This report. Then question. Like review and elaborate various aspects and utility of given logical framework, like kindly write letter of recommendation with reference of daily media briefing reports in follow up of the reported issues to the concerned authorities regularly for inclusion in day-to-day action plan and their annual program of action for resolving the reported issues and consideration on presented suggestions and recommendations. प्रश्न है, दिए गए फॉर्मूले की उपयोगिता की व्याख्या करें। एक उदाहरण द्वारा उक्त फॉर्मूले को सत्यापित करें। जैसे सुनते देखते हुए ध्यान देकर आप भी बोल या लिख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि कुछ कुछ डॉट 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 XYZ इत्यादि। अतः या इसलिए मेरे आपके या उनके अनुसार ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कोई उदाहरण देके बताइए। Next question is, signify the utility of given formula and prove with an example. You can, may or will also write or speak in follow-up of any audiovisual presentation in any event or live program review by referencing the orator or writer or actor or leader as he or she told that so and so, details reference of the referred statements. Thus, it may be inferred from his, her, or their statements and or my or your perspective as, then you can explain your understanding. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रीगणों के शपथ ग्रहण समारोह की प्रसारण देखकर खुशी हुई। बधाई और शुभकामनाएं हैं। शहरीकरण के विविध आयामों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रसारण में सतत विकास लक्ष्य उन्मुख शहरीकरण हेतु सुझाव और प्रस्ताव पत्र साझा किया गया था। कल एक प्रसारण देख रहा था यूनाइटेड नेशंस के यूट्यूब चैनल पर। शहरी विकास हेतु सदस्य राष्ट्रों में शहरी विकास हेतु जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार निर्माण किए जाने चाहिए, जैसे कि पोषण वाटिका से युक्त आवासीय परिसर हर घर में ऐसे बनाए ताकि थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी की खेती कम से कम हो सके। जैसे धाजा गाड़ते हैं हनुमान जी का, उस तरह का 2-4 छोटा छोटा गड्ढा गान करके उसमें सब्जी का अगर पौधा भी लगा देते हैं तो घर में फिर फसल उसका फैल जाएगा और सब्जी उब्जी उपजने लगेगी। हरित क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जैसे दिल्ली में स्पेशल ग्रीन टेरिटोरीज हैं। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तंत्र बनना चाहिए। विद्युत एवं सौर्य ऊर्जा आपूर्ति तंत्र हो। रसोई ईंधन आपूर्ति तंत्र, या फिर एगो गाना था बड़ा अच्छा, राजा हिटर वाला ईंधन,
यानी इंडक्शन हीटर आ जाएगा, लाइन का सप्लाई बहुत अच्छा हो गया है बिजली का, तो ऐसा चूल्हा बन जाए इंडक्शन वाला जिससे कि करंट मारने का डर नहीं हो, चूल्हा पर मारे ना करंट, वो परमानेंट रहे और उसके बाद हिसाब से क्या हो, अच्छा से खाना बन जाए, उस टाइप का इंडक्शन हीटर भी सप्लाई किया जा सकता है उज्ज्वला गैस ईंधन योजना के साथ साथ। नागरिक खाद्य सुरक्षा सेवाओं एवं जन आपूर्ति तंत्र को सुचारू रूप से संचालित की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाता सेवकों की जनसंख्या के अनुपातिक नियुक्ति एवं स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। रोजगार और आजीविका विकास हो। आपदा रोधी संरचना निर्माण हो। स्वच्छता प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल निकासी तंत्र हो। परिवहन हेतु सड़कों, गलियों, राजपथों, रेलपथ, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट का निर्माण एवं इलेक्ट्रिक रिक्शा, प्रदूषण मुक्त वाहन, हवाई जहाज एवं सुचारू ट्रैफिक प्रशासन हो। सक्रिय सुरक्षा व्यवस्था एवं लोक प्रशासन तंत्र रहे। विशेष औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाए। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण, धार्मिक पर्यटन और मनोरंजन केंद्र भी स्थापित किए जाने चाहिए। शैक्षणिक केंद्र को स्थापना और संचालन किया जाना चाहिए। अतिथि गृह परिसर क्षेत्र भी बनाए जाने चाहिए ताकि देश या विदेश से आने वाले लोग वहां रह सकें और अपने अपने क्षेत्र में यात्रा भी कर सकें और अपना काम भी कर सकें। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सत्संग पंडाल की स्थापना और जगह जगह पर निःशुल्क खाने के भंडारे, लंगर का नियमित संचालन किया जाना चाहिए ताकि लोग स्वस्थ रहें और मेहनत वाले काम भी आराम से कर सकें। जैसे कि पत्थर खदान चलती हैं, कोयला खदान चलता है, या श्रमिक का जो काम चलता है, जहाँ जहाँ सड़क बनाने का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है, उनको भरपेट और संतुलित आहार, पौष्टिक आहार देना कार्य की नियमावली में शामिल किया जाना चाहिए ताकि जो भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर, 151 करोड़ भारत की आबादी में बहुत सारे, लगभग 90% लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर में ही काम करते हैं। उस तरीके से दुनिया के 8 अरब लोगों की है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रम संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जहाँ भी श्रम का काम है उनको भरपेट पौष्टिक आहार दिया जाए सारे श्रमिकों को कार्यस्थल पर, और आमतौर पे जनता के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको खाना पीना, नाश्ता का व्यवस्था गांव में सुबह सुबह लोगों को मिल जाए और लोग अपना ड्यूटी पर जा सकें। इसके लिए नियमित किया जा सकता है जितने भी दुकान चल रही हैं खाने पीने का, उसमें जितना बिक्री होता है उसका लिस्ट बना करके सरकार पेमेंट दे सकती है, तो आने जाने वाले उस तरीके से खा पी सकते हैं। जैसे बोलबम का जब यात्रा होता है तो बाबा धाम के लिए निकलते हैं अधिकांश लोगों को, बीच में रास्ते में भी खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। शहर में कई श्रमिक चौकों पर असंगठित क्षेत्र के श्रम नियोजन कार्यालय का संचालन किया जाना चाहिए ताकि कहीं कहीं श्रमिक को कोई काम मिलना हो, वहाँ ऑफिस में उनको काम मिल जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन लेबर का है, किन्हीं का मिट्टी का है, किन्हीं का बालू का है, किन्हीं को पेड़ लगाने का है, किन्हीं को तालाब बनाना है, किन्हीं को मछली पालन है, किन्हीं को खाद्य प्रसंस्करण का है, और भी कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्रों में काम के लिए लोगों को नियुक्त किया जा सके। वित्तीय दानकर्ता संस्थाओं के कार्यालयों की स्थापना और संचालन किया जाना चाहिए प्रत्येक जिला में ताकि डोनर एजेंसी के सहयोग से लोग अपना काम कर सकें। कई स्थानों पर व्याख्यान, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, इवेंट आयोजन हेतु मीडिया स्टूडियो वाले क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। शहर में जगह जगह पर फ्री इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने वाले और गांव में भी पासवर्ड फ्री वाईफाई इंटरनेट हॉटस्पॉट का संचालन किया जाना चाहिए ताकि लोग इंटरनेट के माध्यम से भी देख सुन पढ़ सकें। सूचना सर्विलांस हेतु सीसीटीवी कैमरा और मॉनिटरिंग केंद्र का संचालन किया जाना चाहिए। विविध औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादक इकाइयों और जन वितरण दुकानों एवं कई स्थानों पर दैनिक सब्जी, अनाज, मसाले, फलों, आदमियों के दैनिक जीवन यापन संबंधी उत्पादों के विपणन और वितरण केंद्र और पालतू जानवरों के उपयोग के उत्पादों का विपणन वितरण केंद्रों का संचालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक 1000 आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन बने। शहर के आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के कृषकों और पंचायती राज संगठन संस्थानों से समन्वय हेतु कृषि उत्पाद विपणन समिति
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC का संचालन हो। नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की स्थापना और संचालन द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और वित्तीय सेवा प्रदाता मंत्रालय विभाग के साझे प्रयास से सतत तौर पर लोक निर्माण कार्यों की आवश्यकता के सर्वेक्षण अनुसार नए निर्माण और रख रखाव के कार्य चलते रहें, ऐसी शुभकामना है। सभी नागरिकों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा सेवाएं दी जाएं। पहले से स्थित शहरी क्षेत्र के प्रशासकीय वर्गीकरण में विकास की आवश्यकता अनुसार सरकारी आदेशानुसार आसपास के क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए। शहरी क्षेत्र के विस्तार का नियोजन और नई विकसित शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई विभिन्न आवासीय और संस्थागत परिसरों, खेती के क्षेत्रों, नदियों, वनों, वन्यजीव क्षेत्रों, प्रशासनिक क्षेत्रों की नियमित तौर पर रख रखाव और प्रबंधन करते रहना चाहिए। संबंधित शहरी क्षेत्र के सतत विकास हेतु उस शहर के संबंधित जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियमित वित्तीय बजट नियोजन में सभी क्षेत्रों के विकास योजनाओं, प्रोजेक्ट प्रस्तावों और वित्तीय मांग पत्रों और प्रगति प्रतिवेदनों को शामिल किया जाना चाहिए। नागरिकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का सतत तौर पर लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। नियम, कानूनों, विधि व्यवस्था के अनुपालन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चलिए आपसे और सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार। श्री गणेशाय नमः।